have 3 particles. It means N1 is 3, N2 0, and so on. And we have, and this is called the partition, where the dots are particles. We have shown different partitions in the, this is E1 level, this is E2 level of energy, E3, so on. This is GI, which contains Ni number of particles, MGI, and number of sub-levels of degeneracy. So we have applied Maxwell-Boltzmann distribution to gas molecules which were distinguishable and identical. But now we apply the Bose-Einstein distribution, which also applies to identical particles. But these are not distinguishable. These are indistinguishable particles. You cannot distinguish. हर particle एक ही जैसा होगा. Different, कोई particle different नहीं होगा. और हर particle के लिए जरूरी है कि it must have zero or integral spin. Zero spin हो या +1 हो, -1 हो, +2 हो, -2, and so on. Such particles are known as bosons. इनके examples हैं photons, phonons, pi mesons, etc., etc. These particles obey the postulate of equal a priori probabilities. जैसे गैस मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने बताया था कि गैस मॉलिक्यूल हर accessible energy state में जा सकता है. इस तरह से हर बोसॉन, हर फोटॉन, हर फोनॉन या पाई मेसॉन हर अवेलेबल accessible energy state में जा सकता है. यानी यहाँ पे भी postulate of equal a priori probability जो है वो वैलिड है. ये वजह है कि फिर ऑक्यूपेशन नंबर किसी एक एनर्जी स्टेट के अंदर नंबर 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 अप टू नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो ये हो सकता है. Maxwell-Boltzmann distribution was applied to identical but distinguishable particles. But this Bose-Einstein distribution is applied to identical but indistinguishable particles. So both distributions must be different. They should be different. That is why a microstate of a gas made up of the indistinguishable particle is defined differently from that comprising distinguishable particle. तो इससे हम different way में इसको define करेंगे. In this case, microstate can be defined by assigning the number Ni of particles in each of the one particle energy eigenstate. जैसे यहाँ हमने डायग्राम में दिखाया है कि हमने हर जो एनर्जी आइगन स्टेट है कि ये E1 स्टेट है, जिसके लिए G1 है और नंबर N1 है. इस तरह से ये ith एनर्जी स्टेट है जिसकी डिजेनरेसी GI है, नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें Ni है और हम सबकी एनर्जी EI है. There is no way of telling which particle is in which one particle eigenstate. अब सारे पार्टिकल आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं. किसी भी इस पार्टिकल को अगर मैं उठा के यहाँ ले आऊँ, इसको इसकी जगह पे ले आऊँ, तो आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगी. इस अरेंजमेंट के अंदर कोई चेंज नजर नहीं आएगी. इनको आपस में इंटरचेंज कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक को यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊँ, यहाँ से एक उठा के इधर रख दूं, अरेंजमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे पार्टिकल एक जैसे हैं. आपको डिस्टिंग्विश करना है. हाँ, अगर डिफरेंट होते हैं, ये फर्ज करें ये रेड था, ये ब्लैक था, इनकी जगह भी अगर हम चेंज करते चेंज हो जाती. इस रेड को यहाँ से उठा के यहाँ में ले आता और ये ब्लैक को उठा के वहाँ ले जाता, तब भी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है. लेकिन अब क्योंकि सारे एक जैसे हैं तो कोई चेंज नहीं आएगी. In order to find the number of physically realizable microstates, we consider the following case. The system of particle which obeys Bose-Einstein statistics. According to this, one particle energy eigenstate can be occupied by any number of particles. We can derive the probability relation from the number of microstates by looking at the number of ways of arranging Ni indistinguishable particles and Gi-1 partitions mixed together in a one-dimensional array as shown in figure. यानी अब यहाँ दो चीजें कंसीडर करेंगे. इनको अरेंज करने के लिए एक पार्टिकल्स
और दूसरा ये पार्टीशन जो दो बॉक्सेस को अलहदा करते हैं, ये पार्टीशंस हैं। अगर ये GI सेल्स हैं तो ये फिर उससे एक काम, यानी अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अगर बॉक्सेस हैं, ये 8 सेल्स हैं, ये 8 एनर्जी स्टेट्स हैं, फिर ये पार्टीशन 1 2 3 4 5 6 7 उससे एक काम होगी। GI अगर ये हैं तो वो GI-1, हमारे पास Ni पार्टिकल्स हैं I स्टेट के अंदर, और GI-1 इसकी पार्टीशन होगी। दोनों को जब अब हम इसको यहाँ से अगर उठा के किसी और जगह ले जाएं तो ये अब बड़ी हो जाएगी, हमें डिफरेंट नजर आएगी। तो इसको यहाँ से हटा दें, सूरत हाल चेंज हो जाएगी। इस तरह से हम दो चीज़ों को मिलाएंगे, एक पार्टिकल्स जो जिनकी तादाद Ni है ith स्टेट के अंदर, और पार्टीशंस जिनकी तादाद GI-1 है ith स्टेट के अंदर। The total number of arrangements Ni plus GI-1 items in a row, of which Ni atoms are of one kind and remaining GI-1 atoms are the other kind. इन पार्टिकल्स को और पार्टीशन को मिला के टोटल जो है वो उसको हम आपस में फिर उनको रीअरेंज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। In such arrangements, if two partitions appear consecutively, the gap between these two partitions can be regarded as a one particle state which is vacant or empty. जैसे ये स्टेट है, दो पार्टीशन अरेंजमेंट, कोई पार्टिकल नहीं है, गैप है, तो ये vacant या empty state कहलाएगी। Therefore, there are n plus GI-1 possible permutations among Ni plus GI-1 items. अगर हमारे पास इतने आइटम्स हैं तो जस्ट इसके साथ पिक्टोरियल की टर्म लगाएंगे तो ये नंबर ऑफ परमुटेशन, ये नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द पार्टिकल्स वो हमारे पास आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास एक पार्टिकल है तो उसको अरेंज करने का एक ही तरीका होता है। अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स, दो आइटम्स हों, उनको हम दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। तीन पार्टिकल्स हों तो उनको हम 3 फैक्टोरियल यानी 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसलिए अगर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जस्ट उसके साथ फैक्टोरियल की टर्म लगाएंगे तो उनको अरेंज करने का, ये डिस्ट्रीब्यूट करने का जो परमुटेशन है, नंबर ऑफ वेज हैं, वो हमें मिल जाते हैं। Ni plus GI-1 आइटम्स के लिए Ni plus GI-1 फैक्टोरियल पर नंबर ऑफ पॉसिबल वेज या परमुटेशंस बनेंगे। और इस तरह से अगर हम सिर्फ और सिर्फ Ni पार्टिकल्स को कंसिडर कर लें, Ni पार्टिकल्स अमंग देमसेल्व्स, उनको आपस में रीअरेंज करना चाहते हैं तो इससे जो हमारे पास बनेगी Ni के साथ फैक्टोरियल लगाएंगे, Ni फैक्टोरियल परमुटेशंस, Ni फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दीज Ni पार्टिकल्स अमंग देमसेल्व्स। तीसरी बात, जो GI-1 पार्टीशंस हैं उनको अगर हम आपस में अरेंज करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसके लिए जस्ट इसके साथ फैक्टोरियल लगाएंगे तो GI-1 फैक्टोरियल नंबर ऑफ परमुटेशंस ये नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे। लेकिन एक बात जो इसमें नोट करने वाली है, क्योंकि पार्टिकल सारे के सारे एक ही जैसे हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, एक ही जैसे बॉल्स हैं, तो एक बॉल सेम बॉल को दूसरे बॉल से रिप्लेस करें तो कोई चेंज नहीं आती। इस किस्म की अरेंजमेंट जिसमें चेंज ना आए, पहले जैसी ही अरेंजमेंट हो, उसको हम इररेलेवेंट अरेंजमेंट्स कहते हैं। ये अरेंजमेंट्स आर परमुटेशंस आर इररेलेवेंट। लेकिन वो जिसमें चेंज हमें नजर आए, तो पार्टिकल को हमने दूसरे के साथ चेंज किया और इससे हमें चेंज नजर आती है, डिस्ट्रीब्यूशन पहले से डिफरेंट नजर आती है, उस केस में हम उसको रेलेवेंट परमुटेशंस कहते हैं। रेलेवेंट परमुटेशन जो डिफरेंट हो और इररेलेवेंट परमुटेशंस जो सेम हो। तो इनसे हम प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट जो बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी Wi is the number of microstates and this is the relevant permutation divided by irrelevant permutations. यानी ये वाली relevant permutations है Ni plus GI-1 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, पार्टिकल्स और पार्टीशन। तो एक पार्टिकल की जगह अगर हम पार्टीशन ले आए तो अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी। और जो ये Ni फैक्टोरियल है कि सारे पार्टिकल्स की, एक पार्टिकल तो दूसरे पार्टिकल से चेंज करने से डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई चेंज नहीं
आएगा। ऐसे ही ये पार्टीशंस हैं, एक पार्टीशन को दूसरे पार्टीशन से रिप्लेस कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों जो है वो ni पिक्टोरियल और gi माइनस 1 पिक्टोरियल, ये दोनों इरेलीवेंट थे, ये दोनों हमने डिवीजन में दे दी हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। ni प्लस gi माइनस 1 पिक्टोरियल डिवाइडेड बाई ni पिक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई gi माइनस 1 होल पिक्टोरियल। दिस इज द प्रोबेबिलिटी और फॉर ओनली फॉर द ith स्टेट। अब होल सिस्टम के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ आई स्टेट नहीं है, और भी बहुत सारी स्टेट्स एनर्जी की स्टेट्स हैं, E1 E2 E3 सो ऑन। इस तरह से आई को अगर हम फर्ज करें 1 रखें, तो ये फिर यहाँ N1 प्लस G1 माइनस 1 पिक्टोरियल N1 पिक्टोरियल G1 माइनस 1, तो ये पहली जो एनर्जी स्टेट है उसके लिए ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी। आई को 2 रखने से दूसरे की बनेगी, तीसरे की, इस तरह से। और फिर होल सिस्टम के लिए जब हम करेंगे, इन सब को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी W विल बी इक्वल टू W1 multiplied by W2 multiplied by W3 so on multiplied by WI। उसको फिर हम इस मल्टीप्लिकेशन को लिख सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में पाई आई WI, और WI की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर देंगे, पाई आई NI प्लस GI माइनस 1 होल पिक्टोरियल डिवाइडेड बाई NI पिक्टोरियल एंड multiplied by GI minus 1 pictorial। This is the probability statement for the Bose-Einstein distribution, and this relation is known as Bose-Einstein statistics। अब जैसे पीछे हमने किया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए, हमने इस W की मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी। अब हमारा काम ये है इस W की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके हमने डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू का वही मेथड है कि इसका डेरिवेटिव लेंगे, इक्वल टू 0 रख के इक्वेशन को सॉल्व करें। लेकिन चूंकि ये अगेन खासी बड़ी है, मल्टीप्लिकेशन बहुत सारी टर्म्स का है, इसके पहले हम लॉग से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 फिर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम डेरिवेटिव लेने का, तो हम यहाँ इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। डेरिवेटिव लेंगे, ये जो है प्रोडक्ट ये समेशन में चेंज हो जाएगा। तो ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस नीचे वाली दोनों टर्म माइनस लॉग NI और माइनस लॉग GI माइनस NI। अब ये फैक्टोरियल वाला है, तो फैक्टोरियल को ख़त्म करने के लिए जैसे हमने पहले किया था, यहाँ भी हम स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे कि log x पिक्टोरियल इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x log x माइनस x। अब यहाँ ये पूरी टर्म को आप x कंसिडर कर सकते हैं, तो हमारे पास फिर इस टर्म का जो बनेगा स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन, तो ये होल टर्म NI प्लस GI माइनस 1 और log ऑफ दिस और फिर माइनस log दिस टर्म x log x माइनस x log x माइनस x। इस तरह से ये n पिक्टोरियल में x की जगह हम n पिक्टोरियल रखेंगे, तो ये माइनस n पिक्टोरियल log n पिक्टोरियल और माइनस n पिक्टोरियल। लेकिन चूंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ है, तो ये माइनस इस वाले माइनस को प्लस करके हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। और इसमें भी फिर अब हम इसको x की जगह रखेंगे GI माइनस 1 को, तो GI माइनस 1 log GI माइनस 1 और फिर माइनस GI माइनस 1। यहाँ भी अगेन चूंकि यहाँ माइनस का साइन है, तो ये वाला जो माइनस है यहाँ प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, अगर आप इसको हम खोलें तो ये माइनस GI बनता है, ये माइनस NI माइनस GI प्लस 1, और इस तरह से ये प्लस GI माइनस 1, ये प्लस GI, इस यहाँ जो माइनस GI बनेगा उससे आप कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे ये प्लस NI है, ये माइनस NI होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब अगेन इसको फर्दर इसका डेरिवेटिव लेने से पहले हमने इसमें कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई किया था। यहाँ अगेन दो कंस्ट्रेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच एनर्जी स्टेट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो पहली स्टेट में N1 थे, दूसरी में N2, सो सबको ऐड करेंगे समेशन NI जो कि टोटल नंबर n के इक्वल है। और इसको n को इधर शिफ्ट करने से हमने यूं लिख दिया, और फिर इसको हमने एक स्केलर क्वांटिटी अल्फा से मल्टीप्लाई किया था। इस तरह से सेकंड कंस्ट्रेंट थी कि टोटल नंबर ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन द ऑल एनर्जी स्टेट्स मस्ट बी इक्वल टू E। ये पहली लेवल की एनर्जी है, ये दूसरे लेवल एनर्जी है, ये तीसरी एनर्जी स्टेट की है, ये चौथी, सो ऑन। सबको ऐड करके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी E। को भी इधर शिफ्ट किया, हमारे पास ये था, और इस टर्म को हमने इस इक्वेशन को बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है। अब ये दोनों कंस्ट्रेंट्स अल्फा वाली और ये बीटा वाली दोनों टर्म को हमने जैसे पहले किया था माइनस करेंगे, जो हमारी log W वाली टर्म है,
इस टर्म में से हम ये अल्फा वाली और बीटा वाली दोनों टर्मों को इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों जीरो वाली टर्म है और जीरो वाली टर्म को किसी भी इक्वेशन से माइनस करें तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता। तो ये हमने ये टर्म्स को माइनस कर दिया। ये जो समेशन का सिंबल है ये हमने बाहर कॉमन निकाल लिया हुआ है, इसलिए ये पहली टर्म है जिसको माइनस किया और ये दूसरी टर्म है जिसको हमने ये वाली माइनस किया इसमें से। अब अगला स्टेप है इसका डेरिवेटिव लेना। यहाँ भी जैसे मैंने कहा कंस्टेंट से पहले ये जस्ट डब्ल्यू था, कंस्टेंट ऐड करने के बाद हमने डैश की सिंबल ताकि थोड़ा सा डिफरेंस शो कर सके। अब कंस्टेंट हमने अप्लाई कर दी हुई है इसके ऊपर। इसका एन आई के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। एन आई के अलावा बाकी जितनी टर्म्स होंगी वो कांस्टेंट कंसिडर होंगी। तो डेरिवेटिव सिर्फ उन टर्म्स का आएगा जो जहाँ एन आई है। समेशन वैसे ही है और इसका ये दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक जे और एक जे। तो प्रोडक्ट फार्मूले से इसका हम लेंगे। पहले हमने इस टर्म को ऐसे ही लिखा फर्स्ट टर्म को, और सेकंड टर्म लॉग वाली टर्म का डेरिवेटिव लें। तो लॉग हम जानते हैं लॉग एक्स 1/x होता है, तो ये 1/x। और फिर उसके बाद इस टर्म का डेरिवेटिव हमने लेना होता है। एन आई का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। जी आई का डेरिवेटिव 0 और 1 का डेरिवेटिव भी 0। इसका यही बनता है हमारे पास। इसके बाद ये लॉग वाले टर्म को लिखेंगे और इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ एन आई का डेरिवेटिव 1, जी आई का 0 और 1 का फिर 0। हमारे पास जस्ट यही टर्म बचेगी। अब ये वाली टर्म है, इसका डेरिवेटिव एन आई का 1, जी आई का 0, 1 का भी 0। माइनस ये भी दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। एन आई लॉग एन आई का डेरिवेटिव 1/ni माइनस लॉग एन आई और एन आई का डेरिवेटिव 1। इस एन आई का डेरिवेटिव 1, ये इसमें एन आई नहीं है, पूरी टर्म का डेरिवेटिव 0। यहाँ भी एन आई नहीं है, टर्म डेरिवेटिव 0 माइनस एल्फा तो छोड़ के एन आई का डेरिवेटिव तो माइनस एल्फा आ गया, इसका डेरिवेटिव 0। बीटा ई आई को डेरिवेटिव से बाहर निकालेंगे तो एन आई का डेरिवेटिव 1 तो बीटा ई आई आ गया और इसका डेरिवेटिव भी 0। तो सिर्फ ये अब ये वाली इसमें इन दोनों टर्म्स को आप कैंसिल कर सकते हैं। एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में। तो ये 1 आ जाएगा आपके पास और ये लॉग वाली ये टर्म है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एन आई के साथ भी -1। यहाँ टर्म +1 आ रही है, ये टर्म -1, ये दोनों 1 आपस में यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास ये टर्म बचेगी, ये टर्म बचेगी और ये टर्म बचेगी। यहाँ पे भी ये -1 और ये +1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 4 टर्म्स बचेंगी आपके पास। जो कि यहाँ ये लिखी हुई है कि फर्स्ट टर्म ये बचेगी, ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी अल्फा, चौथी ये 4 टर्म्स बचेंगी। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम जानते हैं कि डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0 और फिर इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो हमने डेरिवेटिव को 0 रखा, ये अल्फा नहीं है, ये डी एन आई, डी लॉग डब्ल्यू डैश डिवाइडेड बाई डी एन आई, ये वाली टर्म जो है दिस इज इक्वल टू 0। सो समेशन इक्वल टू 0 और यहाँ अगेन समेशन अगर 0 हो तो हर टर्म 0 हो सकती है, तो समेशन को हम हटा सकते हैं। दूसरी बात कि ये एन आई प्लस जी आई, दिस इज एन आई इज द नंबर ऑफ पार्टिकल और जी आई नंबर ऑफ उसकी सब लेवल या सब एनर्जी स्टेट्स हैं। ये दोनों नंबर ऑफ पार्टिकल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बालमोल में 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो ये बहुत बड़ी रकम है, वन इसकी प्रॉब्लम बहुत छोटा है, तो वन को हम नेगलेक्ट करके जस्ट इसको एन आई प्लस जी आई तक महदूद कर सकते हैं। तो हमारे पास फिर ये टर्म हमने -1 को नेगलेक्ट कर दिया, बाकी टर्म में लिख दिए हैं और ये अल्फा बीटा वाली टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है। दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लिया तो ये -3 हो रही है, ये डिवीजन में चली जाएगी। और अब लॉ को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल ले लिया, यहाँ से लॉ खत्म हो गया, इधर एक्सपोनेंशियल साथ आ गया। ये एन आई और एन आई 1 प्लस दिस हो गया, इस 1 को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, इधर +1 था, इधर आगे -1 हो गया। अब हम इस रिलेशन को उल्टा करेंगे, उल्टाएंगे तो एन आई डिवाइडेड बाई जी आई और 1 डिवाइडेड बाई दिस टर्म अल्फा बीटा आई -1, और यहाँ से फिर हम जी आई को मल्टीप्लाई कर दें राइट साइड पे। एन आई इज इक्वल टू जी आई ओवर exponential alpha plus beta ei minus 1, and this relation is known as the Bose-Einstein distribution। अगर आप और करें तो हमने पहले जो निकाला था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रिलेशन दैट वाज था
ni is equal to gi एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा ei, ये वाली माइनस वाली टर्म नहीं थी जो बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन में, ये डिनोमिनेटर के अंदर -1 की टर्म ऐड हुई है।